हाँ जी, हाँ जी सर। Yes, ma'am. Good evening, ma'am. हाँ जी, गुड इवनिंग सर। हाँ जी। Please start, ma'am. हाँ जी, good afternoon everybody. So today we are going to discuss about the DNHE4. I won't discuss. I mean, I have to take your queries. Okay. So I'll give you a little bit description. After that, you can start discussing with me. Okay, whatever you have to do. Okay, maybe you might be having something in your minds, and what, or maybe you might have. I mean, you might have planned for something. You might have any idea. Okay, so you are doing DNHE course. So we have the 4 modules. I'm just giving you the brief introduction. DNHE 1, 2, and 3. This about these, you know that you have to appear in the exams and you have to submit the assignments for these things. These 3 courses, but these 3 subjects or courses, whatever you want to say it. So now we have to discuss about the DNHE 4, which is actually the project work. You don't have to attend the classes for that. You have to just counsel. You need counseling for that actually. ठीक है, उसके लिए ये नहीं है कि यू हैव टू अटेंड सो मेनी लेक्चर्स लाइक फॉर व्हाट DNHE 1 हम उतने में इतने लेक्चर्स में ही कर सकते हैं कंप्लीट, दूसरे लेक्चर्स में for DNHE 4, you might need more lectures, or you can I mean, you can understand in 2 or 3. Okay, so DNHE 4 में क्या है आपको, you need not to submit the assignments, which you might know, ठीक है. And the project work you have to do is just you have to work on one particular problem, the problem or the hypothesis you can say, ठीक है. Hypothesis, you have to hypothesize, like there are so many kind of the studies. This is little bit more like a research study. Okay, जैसे thesis है. I don't know how many of you have done that thesis work in your previous examination, like who has gone for this रिसर्च वर्क और MSc का सेकेंड ईयर में जो रिसर्च किया होगा, थोड़ा बहुत थीसिस लिखा है, वो सब उनको ज्यादा पता होगा. सो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. आप क्या, आपने क्या करना है, एक हाइपोथेसिस होता है. हाइपोथेसिस का मतलब यही है that you have to plan for something. You can think, ठीक है, okay, Palak said that I have done the thesis, so we can think, yeah, the persons they can actually understand better, but I'll make you understand, whosoever didn't do that, but then also I can discuss these things. Okay, for DNHE 4, you have to hypothesize something. Okay, I mean, you have to think about some problem. You have to make up some points in your mind, like you have to do something. Like सबसे पहले मैं आपको एक example देती हूँ. There are various kind of studies, so I'll tell you that what kind of study you really wanted to have. सपोज आप DNHE कर रहे हैं, सो न्यूट्रिशन का कोई एस्पेक्ट देखना है. इन प्रीवियस ईयर्स सो मेनी थीसिस डन अंडर माय सुपरविजन, DNHE के ही जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें क्या है कि अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ. देयर वाज सम फीमेल हु वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग द DNHE, बट शी वाज हैविंग अ जिम. ओके, सो शी वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग जिम, एंड एक उनके साथ एक और थे पार्टनर जो खुद ही ट्रेनर थे. ठीक है, तो उनके लिए इट बिकम्स इजियर कि वो जिम में जाते हैं. एंड जो मैम थी, शी वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड टू डू समथिंग विद द जो न्यूट्रिएंट फूड्स होते हैं, लाइक चिया सीड्स हो गए एंड और खीरा, या फिर पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड्स जो लोग रिसर्च के लिए आते हैं. फिर उन्होंने क्या किया कि जो एक और थे पार्टनर, उन्होंने क्या किया कि वो बिल्कुल जिम ट्रेनर थे. तो उन्होंने देखा कि हाँ, जिम ट्रेनिंग के बाद उनकी ग्रिप की सपोज भी, उन्होंने फिर क्या किया कि 20-20 लोग ले लिए, बट वो कम थे, बट उनके बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे. ठीक है, दे हैव अपॉइंटेड 20 वो वाले लोग जो दे वर रेगुलर इन द एक्सरसाइजेस, ट्रेनर्स एक्सरसाइज करते थे, दे वर द बिल्डर्स. लाइक उन्होंने क्या किया कि दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द डे वन. लाइक उनकी ग्रिप कैपेसिटी देखी, उनका BP एंड ऑल, वेस्ट हिप मेजरमेंट्स, एंड उनका सारा डिटेलिंग कि कोई और प्रॉब्लम ना हो. ओके, सो कुछ ऐसे फिर 20 उन्होंने ऐसे लोग लिए जो बिल्कुल भी जिम नहीं, हल्का फुल्का वॉक कर लिया, खाने की कोई डिटेलिंग नहीं है. और जो मैम थी साथ में जो कर रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्हीं लोगों का एक फूड का स्केड्यूल बनाया. सो शी वाज वर्किंग ऑन दोज पर्टिकुलर 40 persons विद द फूड. आई मीन, जो हमने एक इन्वेंशन, आई मीन
जो डाली हमने बीच में कि फूड उनका स्पेसिफाई किया कि इतना इतना लेंगे, और जो अदर पर्सन था देवर ही वाज आल्सो लुकिंग फॉर दो पैरामीटर्स की उनकी ग्रिप की, सो कैपेसिटी एंड बीपी एंड जो उनके वेस्ट हिप रेशियोज थे और अदर पैरामीटर्स आल्सो, ठीक है, वो पूरा रिकॉर्ड करके एंड देन हमने एक प्लान बनाया कि डिवाइड दीज ग्रुप्स इनटू टू। जो 20 लिए थे कंट्रोल, जो कुछ नहीं कर रहे थे एक्सरसाइज वगैरह, उनको भी दो में डिवाइड किया, ग्रुप 1 ग्रुप 2, और जो एक्सरसाइज करते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2, उन दोनों को भी, उन ग्रुप्स को भी अलग अलग स्केड्यूल दिया। एक को बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस पे डाला, एक को जिम में ही, एक को थोड़ी सी कम स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस पे डाला, और जो और कंट्रोल वाले थे उनको एक जो थोड़े से वॉक करते थे, थोड़ा ख्याल रखते थे खाने पीने का, बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज, दे वर नॉट जिम गोइंग पर्सन्स, बट एक एक ग्रुप ऐसा हमने रखा जो बिल्कुल ही सेडेंटरी था, ठीक है, तो वो हो गए कंट्रोल केसेस, उसमें भी हमने दो ग्रुप बना दिए थे। सो तो हमने एक इंटरवेंशन रख दी कि इतने दिन के बाद हम नोटिस करेंगे, वी हैव नोटिस देम फॉर 1 मंथ, ठीक है, हमने बिल्कुल मेक श्योर किया कि वो लोग मिस ना करें, वो लोग खाना भी प्रॉपरली खाएं, लेकिन जो लोग थे दूसरे कंट्रोल, उनका भी हमने ख्याल रखा कि कहीं वो ना एक्सरसाइज करनी शुरू कर दें और अपनी डाइट का ना ख्याल रखना ना शुरू कर दें, ऑब्वियसली, बिकॉज फिर वो दिक्कत आनी शुरू हो जाती है केस एंड कंट्रोल स्टडीज में, ठीक है, जो उनका पैरामीटर है वो वैसे ही रखें जस्ट फॉर 1 मंथ, ऑब्वियसली, बिकॉज वी रियली वांटेड टू कंपेयर दीज टू ग्रुप्स। सो आफ्टर 1 मंथ हमने देखा कि थोड़ा सा लोगों की वेस्ट हिप रेशियो में, थोड़ा सा बीपी में, थोड़ा सा उनकी हैंड ग्रिप में, थोड़ा सा एक्टिविटी लेवल्स में, थोड़ा सा उनका स्ट्रेंथ में, स्टेमिना में, दे वर फीलिंग बेटर। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चनर फिल करते रहते हैं आफ्टर वीक। व्हेन वी स्टार्टेड दिस स्टडी, at that week we have started in the beginning of the initial 0 point पे we have filled 40, ठीक है, हमने केसेस कंट्रोल्स लेके बीच में ग्रुप 1 में है, ग्रुप 2 में है, ये सब देखा। फिर आफ्टर 1 week वी हैव मेजर्ड सम, सारे के सारे पैरामीटर्स वी हैव मेजर्ड। फिर आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 3 weeks, आफ्टर 4 weeks तक हमने ये स्टडी कंटिन्यू की, ठीक है ना, डीएनएच था, वी कुड गो फॉर अ लॉन्गर वन। अब 3-4 months में आपको कंप्लीट करना होता है, देन यू हैव टू एनालाइज द डेटा एंड देन यू हैव टू राइट अबाउट दीज थिंग्स। तो ऐसी सी चीजें वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, तो फिर उनका कंपैरिजन करते हैं, तो ऑब्वियसली बात जो हमने हाइपोथेसाइज किया था, वी हैव हाइपोथेसाइज्ड दैट after the exercise, the gripping capacity, the strength and the stamina and the breathing exercises, the activity level and the waist hip ratio थोड़ी सी, और बीपी भी मॉनिटर करेंगे, मीन ऑल दीज, और बहुत सारे पैरामीटर्स थे। तो स्लोली दीज पैरामीटर्स जब हमने चेक करने शुरू किए, तो द पर्सन्स दे वर फीलिंग बेटर, उनकी ग्रिप, उनकी स्ट्रेंथ, उनका स्टेमिना, उनके एक्टिविटी लेवल्स, they were fine as compared to the previous ones, and they were gradually strength was improving after 1 week, after 2 week, after 3 week, and after 4 weeks they were like, I mean, they were feeling like good, the strength of the body and the toning of the body, toning of the muscles. And we have compared all these parameters with the cases and controls, like they were a little bit less better than the person who are taking care of their food, and they were like morning evening सैर कर रहे थे, but they were very bad in those persons who were not actually even doing any kind of exercise, they were following the sedentary lifestyle, okay. So these kind of things which we have to study, this is also one of the hypothesis, like फिर हमने क्या किया, फिर वो जो लोग होते हैं जितने भी हैं, मतलब जो अंडर स्टडी है, जो भी कैंडिडेट हैं, लाइक यू पर्सन्स, यू आर डूइंग डीएनएचई, सबसे पहले आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होता है, सबसे पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर, बिकॉज जब आप रिव्यू करेंगे ना, रिव्यू, ठीक है, पूरा लिटरेचर, जिस तरह की आपने हाइपोथेसाइज कर ली प्रॉब्लम, तो जब आप रिव्यू करेंगे एंड देन आपको पूरा पिछला आपको देखना पड़ेगा कि यस, इस तरह की एक्सरसाइज करने से इस तरह के पैरामीटर विच वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, वो आपको बेटर बनाते हैं, और हाइपोथेसाइज करोगे, फिर वो सारी स्टडीज आपने नोट कर लेनी है, नोट क्या, आपने लिखना है पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, वन आफ्टर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पार्ट देके, लाइक यू हैव टू, आपको एक थीसिस या प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बुक की तरह खुद कंपाइल करनी है, दैट शुड बी हैविंग योर ओन वर्डिंग, कट एंड पेस्ट नहीं करना है, समझ के डिफरेंट रिसर्च पेपर सर्च करने हैं, दैट्स ओनली कॉल्ड दी रिव्यूइंग ऑफ द लिटरेचर, पुराना जितना भी काम हुआ होगा, बिकॉज यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन हु वाज वर्किंग, आई मीन ऐसी सी चीजों के ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है, बिकॉज दिस इज अ डिप्लोमा वर्क, बट यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, आप इसको कंपेयर करके।
सो ये मैंने आपको एक प्रॉब्लम, एक हाइपोथेसाइज, प्रॉब्लम नहीं, दिस इज अ हाइपोथेसिस विच हम करते हैं। और हाइपोथेसिस आपको पता है कि वो पॉजिटिव, अगर जो आपने सोचा था, ये कोई जरूरी नहीं होता, जब आप प्लान करते हो तो जब आप सोचते हो तो वही भी होता है, और उसका थोड़ा कम भी हो सकता है। अरे हमने तो ये प्लान किया था, ये थोड़ा सा पॉजिटिव निकला। और कई बार क्या होगा, टोटल नेगेटिव रिजल्ट्स आएंगे, आप उसको नेगेटिव कहोगे, कई बार कुछ भी नहीं आएगा, जो आपने पॉजिटिव सोचा वो भी नहीं आएगा, जो आपने नेगेटिव सोचा वो भी नहीं आएगा। सो उसमें नल हाइपोथेसिस हो जाता है। सो हमें अपना हाइपोथेसाइज करना है पहले प्लान, एंड देन वी हैव टू सेट दी ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव में कि अगर हम ये करेंगे, आई मीन अगर हम इतनी पॉपुलेशन लेंगे, उसमें हम ये चेक करेंगे, और अगर हम ये इंटरवेंशन बीच में करेंगे, देन दिस वुड बी द रिजल्ट। ठीक है, उनका बीपी ठीक हो जाएगा, उनका स्ट्रेंथ लेवल नंबर 2 ठीक हो जाएगा, नंबर 3 उनका एक्टिविटी लेवल बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू दी जो पर्सन्स नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑप्ट कर रहे हैं, उनके कंपैरेटिवली दे वुड बी मच बेटर। ओके, एंड देन उनका हंग मीन क्या कह सकते हैं, आपको स्टाइटी लेवल बढ़ जाएगा, या हंगर लेवल बढ़ जाएगा, या एक्टिविटी होगी, दे माइट बी हैविंग मोर हेल्दी स्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल। मतलब आप कुछ भी पैरामीटर्स लेके आपको पहले तो एक रिव्यू करना है, एंड देन यू हैव टू सेट सम ऑब्जेक्टिव्स कि आपको इस हाइपोथेसाइज में ये वाले ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। बिकॉज ये आप तब कर पाएंगे when you start when you hypothesize some problem in your mind, and then you start reviewing of that hypothesis on the internet। ठीक है, आप लिटरेचर सर्च करेंगे, आप सब सर्च करके, एंड देन यू पुट दैट थिंग इनटू अपने कंप्यूटर में पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करके, देन यू कैन मेक सम ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसने ये किया था, हम भी करके देखते हैं, ये किया था, ऐसे करके देखते हैं, उसने ये इंटरवेंशन रखी थी, इतने दिन के लिए ये खाना और ये एक्सरसाइजेज दी थी, सो वी कैन मॉडिफाई लिटिल बिट अ प्लान कि हम इससे थोड़ा सा ज्यादा करके देखते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अब तब इन ऑब्जेक्टिव्स को में क्या हो जाएगा, लेंथ में ये वो, स्ट्रेंथ, वट एवर you want to make your objectives according to that the problem or the hypothesis which you have planned। okay, सो जब आप ये करेंगे, उसके बाद आप केसेस एंड कंट्रोल, फिर आप मेथोडोलॉजी प्लान करेंगे कि ऑब्वियसली जब हमने ये हाइपोथेसाइज कर लिया, हमने पूरा लिटरेचर रिव्यू कर लिया, एंड देन वी हैव मेड सम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स कि हमें इसलिए ये करके देखना पड़ेगा। अब वो आपने सेट कर लिया। ठीक है, अब आप चेक करना चाहते हैं, अब स्टार्ट कैसे करना है, तो आपको एक मेथड्स फॉलो करना पड़ेगा, मेथोडोलॉजी। उसके लिए फिर आप प्लान करोगे, उस मेथोडोलॉजी में यू कैन राइट कि लाइक आप ऐसे इतने लोग और इतने केसेस और इतने कंट्रोल केसेस, ठीक है, आप रिक्रूट करोगे, आप अपनी स्टडी में एनरोल करोगे, आप एक क्वेश्चनर बनाओगे जिसमें आप उनका सारा डेटा लोगे, उनके नाम से लेके फोन नंबर, एड्रेस, कहाँ बर्थ हुआ था, कौन सा ऑयल वो खाते हैं, कौन सा, मतलब ऐसे ऐसे एक क्वेश्चनर पूरा बनाना है आपको अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली, वट एवर यू हैव हाइपोथेसाइज्ड, वट एवर यू हैव प्लान्ड अबाउट द स्टडी टू डू इट फॉर द DNHE4 एज ए प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर जब आप वो क्वेश्चनर से फिल कर लोगे, हो सकता है आपकी क्वेश्चनर बेस्ड स्टडी हो सकता है आपको रियली इन्वॉल्व होना पड़े लोगों के साथ, हो सकता है आई मीन रियली आपको फोन, लेकिन क्या है कि ऑन आजकल मैं यही प्रेफर करूंगी कि डोंट गो एनीवे है, बिकॉज वी डोंट प्रेफर दीज डेज। सो यू कैन प्लान फॉर सच अ थिंग, यू कैन डिस्कस विद मी, अभी ये डिस्कस करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या हम प्लान कर सकते हैं, सो दैट यू कैन हैव द डेटा ऑनलाइन ओनली। ठीक है, तो आप उनको घर में कह सकते हो कि आप ऐसे ऐसे एक्सरसाइज कर लो, या वट एवर, हम देखते हैं अभी क्या हमने करना है। ठीक है, हर इंडिविजुअल की अलग होगी, या फिर 2-3 लोग एक कर सकते हैं, बट कोशिश करो कि एवरी इंडिविजुअल शुड डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि हर किसी की अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, इसके बाद आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अगर जब आपने मेथोडोलॉजी बना ली, क्वेश्चनर सेट कर लिया, आप ऑनलाइन सारा डेटा लोगे, उनके आप मेजर कर रहे हो पैरामीटर्स एंड ऑल, उसके बाद आते हैं रिजल्ट्स। फिर आप क्या करोगे कि आप जब रिजल्ट्स का गैदर करोगे डेटा, पहले का, बीच का, फर्स्ट वीक के बाद का, सेकंड वीक के बाद का, थर्ड के वीक के बाद का, फिर आप कंपैरिजन करोगे, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स बनाओगे। लाइक आप वेट, सपोज आपने वेट लिया था, 40 लोगों का वेट लिया, ठीक है, 20 लोग तो अंडर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 20 ये लोग हैं, तो इन सबका 1 1 2 3 4 5 20 लोगों के, फिर आप एनालिसिस करोगे कि यस 10 लोगों का जो था, ठीक है, और वेन एवर 10 पीपल का जो था, आपने डेटा लिया, उन्होंने तो उनका इतना वेट लॉस कैसे हो गया, 5 किलो वेट कर लिया उन्होंने लॉस, या 7 kgs लॉस कर लिया उसमें 1 वीक में, और बाकी 7-8 लोगों का हुआ नहीं। देन यू हैव नीड टू चेक दैट वेदर दे हैव फॉलोड जो वट एवर इंटरवेंशन यू हैव सजेस्टेड, दैट वट एवर they have followed actually or not, maybe they have skipped,
मे बी दे हैव चीटेड, और या फिर उनकी कोई और प्रॉब्लम है कि ओबीज प्रॉब्लम है कि क्या और प्रॉब्लम है कि उनका इतना नहीं हुआ। लेकिन देन आपको ये चेक करना है विद द कंट्रोल केसेस जो हमने रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं कि दे डोंट हैव टू डू एनी एक्सरसाइज, ओके। सो जब आप चेक करोगे तो उनका नहीं होना चाहिए, सो फिर स्टडी बनती नहीं है ना बात उसका। वो आपको कंट्रोल केसेस रखने हैं विच आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइज, विच आर नॉट फॉलोइंग एनी डाइट, या फिर ऐसी चीजें, ठीक है। तो फिर जब आप कंपेयर करोगे और टेबुलेटेड बनाओगे, जैसे आप वेट का ले लोगे, वेट कम हो गया तो एक वेट का लोगे आप, उसमें आप स्टैट्स लगाओगे, कैलकुलेट करोगे, मीन एवरेज निकालोगे, स्टैंडर्ड निकालोगे, ओके। सो उसमें फिर आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली यस, विवेक इज आस्किंग फॉर दैट कि वी कैन पब्लिश इन अ गुड जर्नल्स। ऑब्वियसली इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द स्टडी, जितनी आप अच्छी स्टडी करेंगे और अच्छे तरीके से रिजल्ट्स कंपाइल करेंगे, अच्छी रिजल्ट्स डिस्कशन होगी, कुछ निकल के सामने आता है विच यू कैन प्रेजेंट लाइक दिस इज द न्यू थिंग एंड ऑल। जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी वर्डिंग, अच्छी कंपाइल किया होगा डेटा होगा, अच्छी रिजल्टेंट डिस्कशन होगी, अच्छी रेफरेंसेस के थ्रू आपने कराएगा तो वी कैन पब्लिश। ऑब्वियसली रिसर्च स्टडी है, स्मॉल स्टडीज हैं, बट देन ऑल्सो बट देयर आर, आई सजेस्ट यू, आई हैव सो मेनी स्टडीज, आप मेरे पेपर्स भी देख सकते हो, ठीक है। डॉक्टर गुरजीत कौर भट्टी इज माई नेम, भट्टी जीके पे डाल के आप कई सारे पेपर्स देख सकते हो, रिसर्च पेपर्स भी हैं, रिव्यू आर्टिकल्स भी हैं, ठीक है। सो यू कैन सी के कितना है। मैंने फिजिकल एक्सरसाइज पे आई मीन सो मेनी, बहुत मुझे लगता है नंबर तो आई नहीं, बट मेनी ऑफ द डीएनएचई थीसिस द स्टूडेंट्स दे हैव डन अंडर मी। सो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपके पब्लिश होके दे गेट गुड मार्क्स टू। तो मैंने ये कहा है कि सिंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं हम बनाते, वी बाइंड इट लाइक दी थीसिस की तरह बाइंड करते हैं, ठीक है। बट ये कि आप खुद कीजिए, कई बार लोग बहुत इन बिटवीन जाके, क्योंकि दिस टेक्स टाइम एक्चुअली, planning takes time, review of literature takes time, and setting the objectives also takes time. Then you have to set the methodology. At every stage you need counseling. I mean, जिन्होंने किया है उनको शायद कम पड़े, अदरवाइज अदर पर्सन को वो काउंसलिंग। इसलिए मैंने ये कहा था कि इसके लिए ना कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं कि क्लासेस का कोई नंबर नहीं है, लाइक डीएनएचई 1 2 3 के लिए हम फ्यू डेज में कर लेते हैं। सो इसमें कुछ नहीं है, एनी टाइम आप कभी भी डिस्कस कर सकते हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, अब आप समझ गए हैं, फिर रिजल्ट्स होंगे, फिर रिजल्ट्स के क्या रिजल्ट्स हैं, ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट पॉजिटिव हाइपोथेसिस आपका आना चाहिए। ऑब्वियसली हम चीजें ही ऐसी प्लान करेंगे कि पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, और चीजें ही ऐसी प्लान करेंगे, और छोटी छोटी सी स्टडीज हैं, नो प्रॉब्लम, तो वो आएंगी ऐसी ही, ठीक है। अब आपसे मैं एक और बात कहती हूँ, सबसे पहले क्या होता है कि आपको छोटी स्टडी प्लान करनी है, ठीक है। उसको हम कहते हैं वर्ड, लास्ट में तो थीसिस करेंगे, फॉर स्टार्टिंग में या प्रोजेक्ट रिपोर्ट वट एवर यू वांट टू से टू दैट, स्टार्टिंग में हम एक सिनॉप्सिस बनाएंगे जिसमें हमने हाइपोथेसिस सबमिट करना है, ठीक है। वी हैव टू सबमिट लाइक हमने प्लान कर लिया है, दैट वाज अ टेंटेटिव प्लान। पर वैसे वो टेंटेटिव नहीं, वो पक्का ही होता है प्लान, बिकॉज वी डोंट वांट टू चेंज, ठीक है। हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम प्लान कर दे, बिकॉज मैं कर चुकी हूँ इसलिए आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा ही प्लान करवाऊंगी कि नीड नॉट टू बी चेंज्ड। सो आप सबसे पहले एक छोटा सा वो हाइपोथेसाइज करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे, ठीक है। तो और ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे एंड फिर थोड़ा सा मटेरियल मेथोडोलॉजी हम बनाएंगे। बस इतना हमें सिनॉप्सिस में करना है कि हमने ये हाइपोथेसिस कर लिया, इसके हमने ये चेक हमने करके देखना है, इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए हैं, और इसके लिए हम ये मेथोडोलॉजी प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसे ऐसे करके और ऐसे करके देखेंगे, और थोड़ा सा अपना रिजल्ट का हाइपोथेसिस बोल देंगे कि यस वी हैव प्लान्ड दैट इफ विल डू दिस वे एंड ये वाले रिजल्ट आएंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस, वो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, अगर नहीं आते हैं, होता है, उसकी भी रीजनिंग होती है, क्यों नहीं होता वो भी तो होगा। आप देखो, आप एक्सरसाइज का एक ग्रुप ले लोगे, आपने सपोज 2 ही लोग ले लो, एक बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज जिम जाके कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, ना वो खाने पे कंट्रोल कर रहा है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, टीवी देखा, घर में उठा बैठा बस। और एक बंदा सुबह भी सैर करने जाता है, शाम को 2 घंटे जिम में भी लगाता है, वो मीठा नहीं खाता, वो खाना, तो ऑब्वियसली। और जब आप उसका एक बिल्कुल सेट कर दोगे कि 1 मंथ से लेके आपने 4 वीक्स तक ये सब कुछ करना ही करना है, ठीक है, तो वो सुबह भी जाएगा, शाम को भी जाएगा, डाइट भी कंट्रोल रखेगा, और आपने ये देखना है कि वो मिस भी ना करे बीच में, बिकॉज जब वो हमारी अंडर स्टडी होगा तो देन वी रियली वांटेड टू मेक इट श्योर that he or she should not miss his or her routine which we have set it for our project. Obviously they'll become the subjects for our project, so they don't matlab we can't afford it to miss, and they cannot afford it to miss, because we have to finalize some results, और results तभी आएंगे if they don't want to miss, they don't miss actually. बट जो हमने कंट्रोल लिया, अब कहीं वो भी ना देख के शुरू कर दे एक्सरसाइज बीच में,
या आप मिस कर करके 2 दिन बाद वो भी, एक दिन जिम जाया, एक दिन सैर कर ली, तो फिर उससे हमारे रिजल्ट्स गड़बड़ हो जाएंगे। तो देन वी हैव टू मेक श्योर दैट जो हमने कंट्रोल लिया है उसका जैसा सा लाइफस्टाइल था वो वैसा ही चले। वो नहीं वॉक कर रहा था ना, जस्ट फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो उनके दोनों के, अब आपको पता ही है कि जब यू डू फिजिकल एक्सरसाइज कंट्रोल करोगे इवन फॉर अ 1 मंथ, ठीक है, जिमिंग करोगे तो ऑब्वियसली आफ्टर 1 मंथ ऑल्सो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आते ही हैं, ठीक है। सो इसमें तो नेगेटिव होने का हाइपोथेसिस कोई चांस ही नहीं है। सो इस तरह की स्टडीज हम प्लान करेंगे, और जो सिनॉप्सिस होगा उसमें सिर्फ हमने थोड़ा सा रिव्यू देके और हाइपोथेसिस का टाइटल देके, क्योंकि जो टाइटल है जब हम कर लेंगे फिर वो चेंज नहीं हम करते। टाइटल बिल्कुल चेंज नहीं होगा, मेथोडोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ठीक है, एंड मेथोडोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, और ऑब्जेक्टिव्स वी कैन चेंज हो सकता है काम करते करते हमें कुछ, बट हम उसका टाइटल नहीं चेंज करेंगे। वट एवर वी हैव स्टार्टेड विल बी स्ट्रिक्टली एडहियर टू दैट प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस, एंड ऑब्जेक्टिव्स हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, मेथोडोलॉजी भी हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं। वो तो जस्ट टू अपनी स्टडी को अगर आपने वैलिड करना है तो उसके लिए वो चेंज हो सकता है, सिर्फ टाइटल नहीं होगा। रिव्यू तो हम लिख ही रहे हैं, रिव्यू में तो हमें बहुत एडिशन करें। जो सिनॉप्सिस होता है वो बहुत छोटा सा थीसिस होता है, वो हमें सबसे पहले बना के आप लोग मुझे मेल कर देना, कुछ भी कर देना। मेरा मेल आईडी आप लिख लीजिए, माई नेम इज डॉक्टर गुरजीत कौर भट्टी, तो bhattijk@yahoo.com, उस पर आप सिनॉप्सिस बनाइए सो दैट आई कैन चेक, ठीक है। एंड भट्टी जी के BHATTIGK@yahoo.com, आप उस पर भेजिए सो दैट आई कैन फाइनलाइज। अब पता क्या है, अब मैंने एक प्रॉब्लम दे दी, आप ये भी ले सकते हो, कुछ डायबिटिक लोग ले सकते हो और कुछ नॉन डायबिटिक लोग ले सकते हो। फिर उनका पहले से आप चेक कर सकते हो उनका शुगर लेवल, ठीक है। हाँ, यस, आरसी चंडीगढ़, यस, दिस इज माय ईमेल आईडी, सो यू कैन चेक, बिकॉज आपको सिनॉप्सिस लिख के भेजना ही पड़ेगा। आई हैव टू फाइनलाइज फॉर ईच एंड एवरी पर्सन सो दैट यू कैन सबमिट इट टू द इग्नो सेंटर, सो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। प्लीज कीप इन माइंड कि उसके बाद वो चेंज नहीं होता। यू कैन नॉट चेंज टाइटल सो मेनी टाइम्स, एक आपने सबमिट कर दिया फिर बाद में आप कर रहे हैं। हाँ, आप, yes Palak, you can have any topic which you have in your mind, like I have said that you can have the physical exercise routine intervention, you can have anything, like one of मैं एक और example देती हूँ, one of my student, she has done on older people में उन्होंने क्या किया कि जैसे उनको जाके ना, आपको पता है कि जब लोग, yes you can make your project yourself, but आपको चेकिंग करवानी पड़ेगी बेटा, आपको थोड़ा सा सिनॉप्सिस का चेकिंग के लिए भेजना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल अपने से करना चाहते हैं तो यू कैन डू, अगर आपको एक्सपीरियंस है कि आप सिनॉप्सिस बना सकते हैं, बट यू नीड टू गेट इट साइंड। आई मीन लाइक यू आर डूइंग अंडर सम पर्सन, ऑब्वियसली जब थीसिस करते हैं कोई गाइड होता है, आपका काउंसलर होता है, तो उसकी गाइडेंस में आपको करना पड़ता है, ठीक है। कर आप सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, जो कर सकते हैं। ऑब्वियसली इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की एक प्रॉब्लम होगी, हर किसी का थीसिस है। अगर आप मैक्सिमम लोग करते हैं तो इट्स हमारे पार्ट पे हमारी लेबर कम हो जाती है, ठीक है ना। बट एक बार दिखा दीजिएगा, एक बार चेक करके देन विल फाइनलाइज कि यस यू हैव सबमिटेड दिस हाँ, यस, फर्स्ट सिनॉप्सिस आल्सो, बट थीसिस बहुत बड़ी होती है, ठीक है। यस, यू कैन डू, यस, ठीक है। आप ईमेल आईडी आपने नोट कर लिया, दैट्स फाइन, एंड देन आप प्लान करके देख सकते हैं। अच्छा, मैं आप बता रही थी कि आप कुछ लोग ना कर सकते हो, आप कर सकते हो थोड़ा सा, जैसे कहती हूँ कि ओल्डर पीपल लिए, ओल्ड पीपल में क्या होता है कि आप ना एक हाइपोथेसाइज बनाओगे कि आप उसमें चूज अ टॉपिक फ्रॉम दैट टेल, हाँ, जर्नल, नहीं 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 नहीं, जर्नल से आपने नहीं लेना है टॉपिक, जर्नल से आप, यस यू कैन, पता जर्नल में क्या होगा, जर्नल से आप ये कह रहे हो कि जो ऑलरेडी चीज हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है, आप वो ले रहे हो, ठीक है। फिर नीड नॉट उससे सबमिट कर, उसके आप लेके आइडिया ले सकते हो, ठीक है। नहीं 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 नहीं, कोई फील्ड के लिए कोई जरूरत नहीं है आपको किसी की, फील्ड में आप अब मत जाइए, मेरी बात सुनिए, क्योंकि कोविड डेज हैं तो फील्ड में आप मत जाइए। आप कुछ ऐसी चीजें ले लीजिए जिसपे आप काउंसलिंग या ऑनलाइन क्वेश्चनर फिल करके ले लो। आई मीन मैं तो यही कहूंगी कि आप जितना सोशल डिस्टेंसिंग करके, जितना भी, क्योंकि आप ना तो स्कूल जा सकते हो, या जिम जा सकते हो, कहाँ जाके करोगे, क्योंकि टाइम ही ऐसा आ गया है, और द प्रॉब्लम इज प्रिवेलिंग लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, एवरीथिंग। हाँ, अगर मैं आपको चाहूँ तो आई वॉज राइटिंग वन ऑफ द पेपर, आप इस तरह की प्रॉब्लम्स ले सकते हैं
जैसे अब कोविड है, कईयों को डिप्रेशन आ रहा है, तो आप ऐसे क्वेश्चनर बना सकते हो कि घर में रह के, और कुछ लोग पता है बहुत ख्याल रख रहे हैं अपना, घर में भी पूरा एक्सरसाइज शेड्यूल रखा हुआ है, या लोगों ने अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट करनी शुरू कर दी है, ठीक है, तो आप ऐसा ऐसा सा कुछ प्लान कीजिए, और पता क्या है, आपको एटलीस्ट एक अपनी स्टडी है प्लान करके, उसके बाद आप एक क्वेश्चनर जरूर बनाइए अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड देन आप जैसे अब मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चनर कैसे, आप जैसे मैं पहले आप स्टार्टेड गिविंग यू वन एग्जांपल, सोनिया मैम थी, उन्होंने बनाया था, शी हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन ओल्डर पीपल। अब हमें पता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं ना, देखो हम यंग होते हैं तब तक हमारी जो हेल्थ है वो फ्लोरिश होती है, लेकिन एक सर्टेन एज पे व्हेन यू रीच सम एट सर्टेन एज, तो फिर उसके बाद डिजेनरेशन शुरू हो जाती है। अब जैसे रिटायर्ड पीपल है, शी हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन 60 टू 70, 60 टू 70 टू 80 भी लिए जो रिटायर्ड पर्सन थे, बिकॉज उनका लाइफ स्केड्यूल खराब हो जाता है, खराब इन द सेंस कि चेंज हो जाता है, नॉट द खराब बट चेंज हो जाता है, बिकॉज दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब एंड दे स्टार्टेड सिटिंग एट देयर होम। तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उनमें आ जाता है, बिकॉज उनकी रूटीन सारी चेंज हो जाती है, एंड देन उनका डेली रूटीन, खाने पीने का रूटीन, एवरीथिंग, एंड दूसरा उनकी डिजेनरेशन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो व्हाट दे डू दैट, उनकी इम्यूनिटी लेवल में, और बहुत लोगों को ना रेस्पिरेशन में अस्थमेटिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम आ जाती है। वन द प्रोजेक्ट इज थ्रू फ्रॉम यू, यस यू हैव स्टार्टेड वर्किंग, सबसे प्लान कर लो कि आपको एक प्लान कर लिया, हाइपोथेसाइज कर लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, देन यू हैव टू वर्क फॉर दैट। नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्ट का नहीं नहीं, आपको सब पीडीएफ नहीं, नो, वर्ड फाइल दे सकते हो सो दैट आई कैन करेक्ट, ठीक है, आई कैन करेक्ट, जो भी आप मुझे वर्ड फाइल में टाइप करके भेजोगे इट शुड बी योर वर्डिंग, नेट से थोड़े बहुत पेपरों से आप वर्डिंग ले सकते हो, बट ट्राई टू बी राइट इन योर वर्डिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू डू, उसमें फिर आप लिखिए, फिर आप कीजिए, दैट्स व्हाट। हाउ टू डिस्कस विद यू अबाउट द, आप यू कैन हैव माय नंबर, या फिर पहले आप सिनॉप्सिस भेजिए, ठीक है, आप प्रॉब्लम बताइए, उसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए कि यस मैं ये करना चाहता हूँ, इसके लिए ये ऑब्जेक्टिव मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि भाई मैं, ओके, रोहित अरोड़ा सर सेटिंग सेड दैट he has already approved, yes that's good, हेलो। yes, हाँ जी, यस। यस, गुड इवनिंग मैम, रोहित बोल रहा था मैं। हाँ जी हाँ रोहित जी। सर, रोहित सर आपका कैसे मैम, अप्रूव है हाँ क्या? जी, ये मैम मेरा अप्रूव किया था कि जो मैंने जो प्रॉब्लम भेजी थी, हाँ जी, स्टडी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कॉमन इन्फेक्टिशियस डिजीजेस, तो इसमें मैंने 5 लिए थे, इसके अंदर सब, इसके अंदर डिवीजन। okay, तो which इसमें diseases, देखा I mean 5 कॉमन disease, CID मतलब कॉमन इन्फेक्शन डिजीज दिए थे मैंने। अच्छा, हाँ जी। common infection disease, so in which infection diseases, 5 types of infectious diseases, या फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम इसमें आ गया मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस और वुफिंग कप का आ गया। सेकंड में मैंने okay, लिया डिप्थीरिया, टिटनस और पोलियो। okay, और थर्ड मलेरिया, और फोर्थ लिया था स्किन, आईज और ईयर इन्फेक्शन। इसके अंदर मैंने ठीक, कोविड का भी डाला है कि जो कॉमन इन्फेक्शन के अंदर ही आ गया, कोविड की जो कोविड डिजीज भी है। कॉमन इन्फेक्शन में आ गया, हाँ जी, तो आपने मतलब ये अप्रूव तो कर दिया था भट्टी सर ने। तो मैम ओके, इसके आगे जो मैंने अब इसमें क्वेश्चनियर बनाया है या मेथोडोलॉजी यूज करी है, मेथड इसमें, तो वो कैसे डिस्कस करेंगे आपके साथ? मतलब वो फेस टू फेस होगा या वन टू वन होगा या बाय फोन नंबर होगा, कैसे? नहीं नहीं नहीं, आप मेरा फोन नंबर ले सकते हैं, कोई बात नहीं, बात कर सकते हैं आप, मेरा माई नंबर इज देयर, आप सब मैम नोट कर प्लीज लीजिए, नोट। 8427 891122, जी, 1122, ठीक हाँ है। जी, एवरीबडी कैन हैव, आप मुझे मेल में क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी दिया, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम सेशन भी रखवा सकते हैं ऐसे, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम जो पहले तो आपकी ईमेल आईडी वर्किंग थी, एक्सक्यूज मी, भट्टी जो जी आपकी के, पहले ईमेल आईडी, या भट्टी जी यस के, मैम, यस वर्किंग दैट्स है, वर्किंग, यस वर्किंग, एट द रेट दैट्स माय एट द ऑफिशियल रेट आईडी, जीमेल। यस, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू जीमेल मैम, नहीं, थैंक भट्टी जी के याहू वाली भी आप ले सकते हैं, दोनों वर्किंग है, याहू वाली लीजिए आप, गुरजीत कौर भट्टिया भट्टी जी के @yahoo.com, यू। ठीक है मैम, दोनों पे सीसी कर देंगे, एक पे तो दोनों ठीक पे है, आ जाएगी। हाँ जी। तो अब पता क्या, आप इसके लिए और भी कर सकते हो, कई बार ना हम पहले कुछ और प्लान कर रहे होते हैं ना, फिर आइडियाज और आते रहते हैं, आप इसके लिए पैरामीटर्स बनाइए, एक तो क्वेश्चनर होगा, बट अगर आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं ना, तो आप देखो, आप टेस्टिंग, लैब टेस्टिंग तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर उनके टेस्ट होते रहे ना, जस्ट ट्राई टू नोट इट डाउन, दोज टेस्ट, कहाँ से इन्फेक्शन हुई थी, रीजन ऑफ द इन्फेक्शन, कितनी देर प्रोलॉन्ग रही, विच मेडिसिन दे वर टेकिंग, फॉर हाउ लॉन्ग दे वर टेकिंग, and what is the effect, what are the side effect, or how long it took to I mean to come out of that disease,
ठीक है, मतलब जितने आप पैरामीटर्स ले लोगे, जितनी इंफॉर्मेशन हर डिजीज के बारे में, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस को लेंगे कि इसकी ऑनसेट कब होता है, ये इसकी एज का ऑनसेट क्या था, उस पर्सन का ऑनसेट कब था, कितनी देर था, और तो नहीं फैमिली की थी, किस तरह से हुई थी, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें, मतलब एक भी चीज मत छोड़िए, क्योंकि हर एक पैरामीटर बन जाता है और हर एक चीज निकल के नहीं आगे आ जाती है व्हेन वी एनालाइज द रिजल्ट्स। एक्चुअली पहले हमें नहीं पता चलता, बट जब व्हेन वी स्टार्ट कंपेयरिंग, ओके इसको यहाँ से इसको यहाँ से, पहले एक ऑनसेट ही पैरामीटर बन जाएगा कि ये वाली मलेरिया इसको कब हुआ था और ऐसे कैसे हुआ था और इस तरह से। और जैसे सपोज आपने मलेरिया के 10 केसेस भी ले लिए, किसी को घर बैठे ही मलेरिया हो गया और कोई गंदे से एनवायरनमेंट में था वहां भी नहीं हुआ, या फिर किसी को पानी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। सो यू कैन टेल अबाउट द एनवायरनमेंट दैट इस एनवायरनमेंट में चांसेस हैं मलेरिया के, फिर मलेरिया की कौन सी मेडिसिन थी और कितनी देर तक रहा, उसके बाद उसका कितना वेट लॉस हुआ, या और कोई पैरामीटर तो नहीं लॉस हुआ, कितना उसकी स्ट्रेंथ कम हुई, फिर उसने ऐसे कौन से पैरामीटर या डाइटरी इन्वेंशंस की बीच में जिससे वो आई मीन रिकवर हुआ और कितनी देर में हुआ, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हुए, साइकोलॉजिकली भी वो डाउन, मतलब आप किसी भी तरह का उसका बंदे का पेशेंट का या जो सब्जेक्ट आप रख रहे हैं उसको छोड़िए मत, ठीक है, इतनी डिटेल्ड स्टडी में जाइए सो दैट वी कैन एनालाइज आफ्टर दैट, ठीक है। और एनालिसिस में बहुत सारे फिर उतने टेबल्स फॉर्म्स आ जाती हैं, उतने टेबल्स बनते हैं हर एक पैरामीटर को लेके, फिर उतना ही आप एनालिसिस करते हो, ठीक है। तो इस तरह का मैं आपको एक और एग्जांपल दे रही थी ओल्डर पर्संस का। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे उनको आता, तो उस वक्त ना हमने सप्लीमेंट्स उनको कर दिए सजेस्ट दैट स्टार्ट टेकिंग दिस मल्टीविटामिन एंड ऑल, ये वाली इतनी इतनी डोजेज एंड ऑल। उसके बाद फिर हमने देखा कि हमने 2 मंथ्स की इंटरवेंशन दी थी। ऑब्वियसली जो सप्लीमेंटेशन है अलॉन्ग विद डाइट है, उनको साइकोलॉजिकली थोड़ी देर मेडिटेशन का इंटरवेंशन दिया, हमने बनाया था मेडिटेशन लाइक आपने इतनी से इतने ये खाना खाना है, इतने से इतने आपने लंच करना है, इतने से इतने आपने डिनर करना है, 10 मिनट डेली सुबह मेडिटेट करना है, 10 मिनट शाम को मेडिटेट करना, इतने बजे ये मल्टीविटामिन लेना और ये वाली चीजें आपने नहीं लेनी। हम पूरा एक प्लान बना के देते हैं सो दैट इट, और हम उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि जितनी देर का हमने इंटरवेंशन का स्टडी का रखा है, हमने एवरी 10 डे उनको फॉलो करना है, बीच बीच में भी दे आर सब्जेक्ट्स ऑफ आवर स्टडी, ठीक है। जितनी देर के लिए हमने इंटरवेंशन प्लान की है, वी हैव टू कंप्लीटली फॉलो दैट, ठीक है। हम अच्छा उनके फिर जो किसी को कुछ डिजीज थी, किसी को कुछ थी, किसी का बीपी हाई था, किसी को डायबिटीज थी, तो हम वो सब चीजें भी लेते हैं। फिर हमारे ग्रुप और भी बन जाते हैं, लाइक ये 60 साल का बंदा है, इसको डिजीज है डायबिटीज, इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, लेकिन ये 60 साल का बंदा जिसको कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत इम्यूनिटी सबकी वीक हो रही है, लेकिन फिर भी क्या है कि जिसको डायबिटीज है उसकी इम्यूनिटी और ज्यादा वीक होगी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले को और वीक होगी। लेकिन क्या है कि 60 ईयर्स का एक बंदा जिसको ना ही कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना ही डायबिटीज है, उसकी उतनी इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। सो आप उसको लिटिल बिट बाकी लोगों से पॉजिटिव लेके चलोगे। तो ऐसे केसेस काफी थे हमारे पास, कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले काफी थे, और कुछ थे, और कुछ तो बहुत ही अस्थमेटिक ही थे, तो उनकी तो इम्यूनिटी बहुत ही वीक थी। सो यू हैव टू कंपेयर। तो हमारे पास ना हमने ग्रुप 2 ही बनाए थे कि हम एक लेंगे कि 60-70 साल का बंदा है और इसका 7 साल का, हमने इम्यूनिटी सिस्टम देखनी है, हमने इंटरवेंशन ऑफ अपना मल्टीविटामिन और डाइट का इम्पैक्ट देखना है। लेकिन निकल के फिर क्या आ गया कि थोड़े से डायबिटीज से उनके कम इफेक्ट हो रहा था, सीएचडी वाले थे कम इफेक्ट हो रहा था, और कई बार हमारे पास क्या है कि ज्यादातर हमने 60-65 किए थे, लेकिन हमारे पास 80 ईयर्स के लोग भी आ गए। अब 80 ईयर्स का एक बंदा ऐसा आ गया जिसको ना तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, ना वो अस्थमा था, ना डायबिटीज थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन देन ऑल्सो स्टिल ही वाज वीक, और उसने मल्टीविटामिन जब लिए उसने बहुत अच्छे से रिकवर किया, बिकॉज फिर हमने नो हैंड राइटिंग नहीं, आप टाइप कीजिए, आपको आप साथ ही साथ अपनी चीजें टाइप कीजिए, जब मैं बताऊंगी साथ ही साथ रिफाइन कीजिए, फिर एंड में आपके जाके दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज यू नीड नॉट टू टाइप इट, खुद लिखेंगे आप, खुद सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको उसने फिर क्या किया कि हाँ, वो इतना जल्दी इंप्रूव किया कि वो शुरू से आई मीन फिर हमने स्टडी किया कि वो तो बहुत यंग एज से ही वाज वेरी एक्टिव, ठीक है। वो कभी स्पोर्ट्स पर्सन हुआ करते थे, देन ही वाज इनटू अ गुड जॉब एंड देन ही वाज वेरी वर्क, और अब भी वो काफी हद तक वॉक करते थे। तो हमें फिर पता चल जाता है कि यस दिस केस हमारा जो है ये इवन 60 ईयर्स के साथ भी कंपेरेबल है। हम कुछ अच्छी स्टडीज निकाल के आगे ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन डू डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज, ठीक है। स्किन डिजीजेस पे ले लीजिए, 1-2 मैंने पहले स्टडीज करवाई हैं, मैं जस्ट डिस्कस कर रही हूँ, आपको प्लान आ जाएगा। इसलिए कि स्कूल्स में क्या था, बच्चे जो एक ना खाते नहीं है, ज्यादातर जंक फूड पे थे, फिर हमने ऐसे बच्चे लिए जो बिल्कुल टोटली जंक फूड पे थे, और कुछ ऐसे बच्चे थे जो बीच बीच में खाना भी खा लेते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे थे जिनको हमने न्यूट्रिशियस फूड, उनकी मदर्स को कहा कि इनको 2 बार न्यूट्रिशियस फूड में ये
हॉर्लिक्स या कुछ, और सुबह ये वाला फूड आपने देना ही देना है। और एक बार अच्छे से लंच ये करें जिसमें सब्जी, दाल, राइस, कर्ड ये सब खाएं। रात को शाम को दूध पिए, इतना ml दूध पिए सुबह। और दिन में मेक श्योर किया कि 1 या 2 बार वो फ्रूट्स जरूर खाएं, ठीक है। और हमने फिर जो हमारे सब्जेक्ट्स पे हमने लिया था, ठीक है, चॉकलेट्स उनकी थोड़े दिन के लिए बंद की कि प्लीज अगर बहुत ही जिद करे तो फिर देना, अदरवाइज यू शुड नॉट गिव। तो इस तरह की स्टडीज थी जिनका हमने बच्चों का स्केड्यूल जंक फूड से लेके इंटरवेंशन, ये दैट वाज आवर इंटरवेंशन दैट वी हैव प्लान्ड, and we have planned for this kind of a food and then we went to through that. So उनका फिर कंपैरिजन। अच्छा, दूसरी बात थी जैसे इंडोर स्टडीज पे बच्चे जो आजकल बिल्कुल वीडियो गेम्स और घर में सिर्फ लेटे रहते, और वो वाले बच्चों के साथ जो गली मोहल्ले में खेलते हैं, ग्राउंड में खेलने जाते हैं, बेशक 2 घंटे या घंटा 2 घंटे, और इंडोर गेम्स पे ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो फिजिकल एक्टिविटी हमने, क्योंकि बच्चों का वेट पुट ऑन हो रहा है। और फिर हमने एक ऐसा ग्रुप भी बनाया था जो बच्चे ओबीज होते जा रहे हैं बिकॉज वो जंक फूड एंड सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, सिर्फ वीडियो गेम्स हैं, टीवी है, कार्टून्स हैं एंड जंक फूड है, ठीक है। और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ही नहीं है। और फिर कुछ ऐसे बच्चों का फिर हमने एक्चुअली, हमें बच्चे मिल नहीं रहे थे, कंट्रोल केसेस थे जो, ठीक है, कि जो बिल्कुल ही जंक फूड ना खाते हो और बिल्कुल ही टीवी ना देखते हो, बिल्कुल ही गेम ना खेलते हो और बिल्कुल ही चॉकलेट ना खाते हो। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, सो वी हैव टू क्रिएट देम। हमने उनकी मदर्स को और थोड़े से जो थे उनको कहा कि प्लीज 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 वी रियली वांटेड टू, ऐसे करके हमने थोड़ा सा करते होंगे चीट बीच में, बट फिर भी बेटर रिजल्ट्स थे, ठीक है। और फिर हमने एक मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने वो ना आंगनवाड़ी के साथ उनका कुछ था, जो थोड़ी सी रूरल एरिया में होती है ना, डिस्पेंसरीज होती हैं, वहां पे ना एक मील प्रोवाइड होते हैं। तो उस मील के न्यूट्रिशनल लेवल वैल्यूज हमने चेक की थी कि हम अगर बच्चों को देते हैं, ये वहाँ पे थोड़े गरीब बच्चे थे जिनको खाना नहीं मिलता। फिर हमने ऐसे बच्चे देखे कि यस, जिनको एक्चुअली खाना नहीं मिलता और जो आंगनवाड़ी में भी नहीं आते हैं, जो उस इंटरवेंशन में नहीं है, उस फूड की वो भी एक जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंटरवेंशन ही तो है ना, जो फूड में मेल न्यूट्रिशन और जो गरीब लोग हैं उनको दे के उनकी फूड न्यूट्रिशन वैल्यूज को हाई कर रहा है, सो दैट बच्चों की ग्रोथ ठीक हो। तो हमने वो वाले स्टूडेंट्स लिए, उनकी एज का भी सेटअप आपको सेम लेना है कि इतनी से इतनी एज वाले होंगे, तो वो लेके आपको उन बच्चों को लेना है, वो इंटरवेंशन हो जाएगी आपकी। सो आपका क्वेश्चनर पे ही चल जाएगा। लेकिन क्या है कि हम लोग जाते थे, आई मीन स्टूडेंट जाते थे, वो उनकी मेजरमेंट्स लेते हैं। फिर आप ना, अब अगर ऐसे स्टूडेंट से ऐसा कुछ करना है तो आप फोन पे क्वेश्चनर सेट कीजिए कि बच्चे का बर्थ कब हुआ, उसकी एज कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी वेस्ट हिप रेशियो कितनी है, उसे और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जब बर्थ हुआ था तो मदर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ। हमने एक स्टडी ऐसी की थी कि एक कैंसर था, वो सिंगल केस स्टडी थी, सिंगल, इसको तो हम पता है केस कंट्रोल स्टडीज कहते हैं, जहाँ पे हम केसेस लेते हैं, कंट्रोल्स लेते हैं और नंबर लेते हैं। 25-30 लोग आपको लेने ही लेने हैं, हमने 50 से कम सब्जेक्ट नहीं लेने हैं, 25 कंट्रोल या 30 केसेस या 20 कंट्रोल ऐसे लेने हैं, ठीक है। तो जिस तरह की स्टडी होगी उसी तरह के कंट्रोल केसेस हमारे होंगे। सो मैंने आपको एक बताती हूँ, एक लेडी थी, वो मेरे पास आई, शी वाज वेरी मच इंटरेस्टेड। उन्होंने एक ही स्टडी की थी अपनी मदर इन लॉ के ऊपर, केस कंट्रोल, लेकिन उनका बहुत लॉन्ग था। वो शी वाज सफरिंग विद द कैंसर। यस, आपको देखो डीएनएचई जो है वो 1 साल में कंप्लीट करना है, 3 आपको पेपर देने और एक प्रोजेक्ट खत्म करना है, और 1 साल में एक ही साल की ड्यूरेशन है, डिप्लोमा इज ऑफ 1 ईयर। सो जितनी जल्दी आप करेंगे, ठीक है, उतनी जल्दी में आपका सिनॉप्सिस अप्रूव करके देन वी विल सबमिट, एंड देन फिर उसके ऊपर हमने वर्क शुरू करना है। देन वी हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इन अ फॉर्म ऑफ अ गुड थीसिस एंड विल ट्राई टू पब्लिश टू। सो तभी मैं आपको कह रही थी कि ये जो डीएनएचई 1, 2, 3 है ना, इसमें तो आपको एग्जाम्स देने हैं, पढ़ के और असाइनमेंट सबमिट करनी है। मेजर वन इज दी DNHE 4 एंड बिलीव मी यू विल लर्न लाइक एनीथिंग। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, यू विल एंजॉय एंड यू विल फील गुड, विल बी कॉन्फिडेंट न्यूट्रिशनिस्ट बनेंगे आप। कल को आप किसी को बताते हैं, देन ऑल्सो फील गुड एंड गुड कॉन्फिडेंट होगा आपने, ठीक है। ओके, कि जिसकी आपकी ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई है, तो आपके डीएनएचई के 3 पेपर्स हो चुके होंगे कि नहीं? असाइनमेंट्स एग्जाम ओनली, प्रोजेक्ट इज ड्यू ऑब्वियसली। द जो एक ड्यूरेशन है वो 1 ईयर की है, बट मैक्सिमम आप उसको 3 इयर्स तक लेके जा सकते हो, बट डोंट खींचो मत आप उसको 3 इयर्स तक। आप उसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकता है आप उसको उतनी जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि 3 इयर्स के बाद दोबारा आपको करवानी पड़ती है एनरोलमेंट। तो एग्जाम्स आप जिनके भी हो चुके हैं, नाउ आई वाज रीडिंग सम मैसेज, सो जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं, असाइनमेंट हो चुकी है, ही और शी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ओनली। और जितनी जल्दी होता है, मैं आपको बताऊं 3-4 मंथ्स तो मिनिमम लग जाते हैं, मिनिमम, अगर आप लग के करेंगे, बिकॉज जो आपको
सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना है, उनको कोई इंटरवेंशन देनी है, देन वी हैव टू लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायबिटीज, यस आप कर सकते हैं लेट कॉम्प्लिकेशंस, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्संस ऑफ द डायबिटीज जिनको काफी सालों से हो, एटलीस्ट 5-10 ईयर्स 5-6 ईयर्स से हो, तो आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस, या उससे भी ज्यादा हो, लेट कॉम्प्लिकेशंस में तो 20-20 साल पुरानी डायबिटीज भी हो सकती है, बट इट्स ओके, जैसे भी आपको केसेस मिलेंगे, बट उसके साथ आप अपने कंट्रोल्स भी लीजिए, बट ऐसे कंट्रोल्स लीजिएगा, can you give the exam in the coming session to submit report later, it's up to you, it's up to you wherever उसकी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो सिंपल सी बात है, DNHE 1 2 3 4 मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, आपको काफी क्वेरीज आ रही हैं, DNHE 1 2 3 4 1 2 3 तो है सिंपल, आपको एग्जाम्स देने हैं, उनकी सबमिट करनी थी असाइनमेंट्स, ठीक है, असाइनमेंट्स का एक टाइम होता है कि जब आप जनवरी सेशन होती है तो आप सितंबर तक कर सकते हो, जुलाई सेशन है तो फिर वो मार्च में भी आ जाता है, ठीक है, अगले वाले में, बट आपको कहीं ना कहीं बीच में असाइनमेंट्स दे के तो आपको पेपरों का तैयारी करनी होती है, बस 1 साल के बाद आप 1 साल से पहले पेपर नहीं दे सकते, अदरवाइज 6 मंथ्स के बाद आप कभी भी पेपर दे सकते हो, और मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है, बट आई वोंट गाइड कि आप 3 इयर्स तक खींचो, 1 साल का डिप्लोमा है तो जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी करो, ठीक है। दूसरी बात, असाइनमेंट्स अगर आपकी पहले मिस हो जाती हैं तो आपकी अगली बार आप 6 महीने बाद, या जब भी एक 6 महीने बाद डेट आती है, एक मार्च में होती है, एक सितंबर में होती है असाइनमेंट्स देने की डेट, ठीक है, तो आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो 1 साल का डिप्लोमा, 3 तो पेपर देने हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क का ही काम लंबा होता है, ठीक है, पर वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, साथ ही साथ शुरू कर दो ना, 3 तो किताबें पढ़नी है, चौथे वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है, अगर आपके पास कोई आई मीन जॉब शेड्यूल एंड ऑल आपका बहुत ज्यादा नहीं है, देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग, ठीक है, तो आप लेट, एक डायबिटीज वाला था, यस यू कैन टेक दैट, बट आपको फिर लेट डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, बट फिर आपको लेट ही लोग लेने पड़ेंगे उसी एज के, अगर आप 60 से 70 साल या 50 साल का बंदा है जो इसको, ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्टडी भी हो सकती है, यस, बट आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही किसी का स्टडी नहीं करते हैं, चाहे आप फोन कॉल्स पे उनके पैरामीटर्स लीजिए, बट कुछ ना कुछ, यस यू कैन, डॉक्टर विक्रम शर्मा आप कर सकते हैं बिल्कुल नेफ्रोपैथी पे, बट वही बात है ना सर कि आपको वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, अगर आप डायबिटीज नेफ्रोपैथी पे काम करते हो तो आपको डायबिटीज वाले और जिनको अलॉन्ग विद नेफ्रोपैथी की एसोसिएशन प्रॉब्लम है, डायबिटीज में किडनी प्रॉब्लम है, ठीक है, यस माहिमा यू कैन वर्क ऑन लैक्टेशन, ऑब्वियसली जो छोटे इन्फेंट्स हैं उनके ऊपर लैक्टेशन की, और जो ऐसे ऐसे बच्चे होंगे जिनके ऊपर लैक्टेशन का नहीं, ऑब्वियसली लैक्टेशन के ऊपर आप कर सकते हैं बिल्कुल भी, और ऐसी मदर्स हैं जिनकी कॉम्प्लिकेशन आती हैं बर्थ में, बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, बट आपको ना क्या है कि 20-25 केसेस लेने पड़ेंगे ऐसे, आप ये देखिए वो वाली प्रॉब्लम आप कीजिए, यस बिल्कुल कोविड-19 के आजकल आपको बहुत केसेस मिल जाएंगे, बट बी केयरफुल, जब आप उनका लेते हैं तो आप उनसे सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल ये सब रखिए, फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल, फिर आपको ऐसे लोग लेने पड़ेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे, विच काइंड ऑफ अ फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर्स दे वर अडॉप्टिंग, फॉर व्हाई दे आर अडॉप्टिंग, they don't want to have kid, और फिर डिफरेंस डालना था किडनी में, व्हाटएवर, आपको उस तरह के पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे, नेफ्रोपैथी वालों को नेफ्रोपैथी के ही केस लेने पड़ेंगे, डायबिटीज और फिर ऐसे केस लेने पड़ेंगे जिनको ना तो डायबिटीज हो ना ही नेफ्रोपैथी हो, तो आप ऐसी प्लानिंग कीजिए कि कम से कम आपको 20-25 लोग आइडेंटिफाई भी करने पड़ेंगे, आपको जगह जगह पूछना पड़ेगा, आपको कॉल करनी पड़ेगी, आपको हॉस्पिटल्स में डॉक्टर के साथ कैसे कि प्लीज आप दीजिए, यस प्रेगनेंसी में भी आप कर सकती हैं, आप काफी सारी, फिर वही बात वही आ गई कि आपको प्रेग्नेंट विमेन्स लेनी पड़ेंगी, आपको प्रेग्नेंट विमेन पे काम करना पड़ेगा, देखो कितने होने चाहिए, मैं 50 से कम तो प्रूव ही नहीं करूंगी, आप देखो 50 से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, मैं 80 सैंपल्स पे काम करवाया है जो कॉमन होते हैं, बट हाँ वो वाले कॉमन होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे स्कूल चले जाते थे या आंगनवाड़ी गए, वहां पे 20-50 लोग मिल गए, फिर दूसरे आंगनवाड़ी में चले गए तो वहां मिल गए, कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, पर समटाइम्स कंट्रोल भी आपको ध्यान से लेने हैं, बिकॉज जो आप हाइपोथेसिस करके जो प्रॉब्लम ले रहे हो वो प्रॉब्लम कंट्रोल्स में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिस यू हैव टू मेक श्योर, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप डायबिटीज ले रहे हो तो और कुछ नहीं लेना है कि उसको साथ में और चीजें हो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी आपको फॉलो करना है, बिकॉज अगर आप डायबिटीज पे काम कर रहे हो उसको और बहुत कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बिकॉज हम अगर डायबिटीज के साथ को रीड कर रहे हैं तो उसमें और चीजें ना हो जो उसकी कॉम्प्लिकेशन में, लाइक एक पर्सन थे उनको डायबिटीज थी फिर कैंसर भी हो गया, सो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि उसको कैंसर की वजह से इतनी ज्यादा मेल फंक्शनिंग और ये सब हो रहा है या फिर डायबिटीज की वजह से हो रहा है,
ठीक है। सो इतनी बड़ी चीजें नहीं लेनी है आपको, इंटरमिंगल और इंटरमिक्सिंग सी नहीं करनी, सीधी सीधी सी स्टडी बनानी है, दिस टाइप ऑफ केसेस, दिस टाइप ऑफ केसेस, ठीक है। यस, आप बना सकते हो बिल्कुल, हाइपरटेंशन पे, थायराइड पे बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। बॉडी का एमए वर्क कर रहा हो, करना होगा, क्या होगा एमए व्हाट, आई डोंट नो, ठीक है। सो आप बना सकते हैं हाइपरटेंशन के, देखो बहुत इजीली हर घर में आपको हाइपरटेंशन का पेशेंट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको जो कंट्रोल लेने हैं उनमें हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी आर सेटिंग, फिर आपको उनकी डिटेल लेनी पड़ेगी, फिर हाइपरटेंशन के लिए वो करते हैं, वो सॉल्ट का या लिपिड प्रोफाइल अपना कंट्रोल कर रहे हैं, वेदर दे आर टेकिंग मेडिसिन और नॉट, उनका वेस्ट रेशो कैसा था, फिर उनके बीपी पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग कर करके आपको उसका पूछना पड़ेगा कि उनका मॉनिटर है, मेडिसिन के साथ नहीं है, जब उनको ऑनसेट हुआ था तो क्या हुआ था, बीपी उनको कैसे पता चला था, मतलब इतनी छोटी 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 चीज आपको पूछनी पड़ेगी। if we have to work on our body, what kind of, I don't understand that, कैसे आपको अपनी बॉडी पे कोई एक पैरामीटर या कुछ सेट करना पड़ेगा, या आप उस पे कोई इंटरवेंशन डाल लेंगे, आप अकेले क्यों कर रहे हैं, आप उसके साथ 2-4 लोग और लीजिए, 2-4 क्या 20 लोग लीजिए, जो भी आप इंटरवेंशन चाहते हैं वो आप कर सकते हो। वेट लॉस, यस वेट लॉस में तो आपको लोग लेने पड़ेंगे, ठीक है। बट आपको ना, जब मैं आपको एक बात बताऊं, वेट लॉस में ना आप एक अपनी जरूर डाइट बनाइए, ठीक है। डीएनएचसी के हैं, आप उनकी कैलोरी सेट कीजिए, उनको लोगों को सेट कीजिए और उनको बताइए कि इतने लोग हैं, आपने इतने के बाद आज रोज रोज का उनका खाना, रोज रोज की उनकी चीजें, सो दैट complete your lecture, after that we can discuss with you a lot. Yes, obviously, no, I'm taking your queries, this is my lecture, and हर किसी के individual problem है, individual hypothesis होगा, individually I have to discuss, individual I have to see the parameters। आप ऐसा कीजिए, हर कोई अपना एक हाइपोथेसिस सेट करके अपना एक टाइटल बनाइए, फिर उसके थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, जो whatever you are getting, whatever comes to your mind कि yes मैम I really wanted to see that, ठीक है। अब वेट लॉस या ऐसी कोई चीजें, उसमें इंटरवेंशंस बनाइए कि कोई अच्छा सा फूड है, किसी को न्यूट्रिशन फूड है, कोई मल्टीविटामिन की स्टडी है, ठीक है। ऐसी सी चीजें आप सेट करके उनको इंटरवेंशन पे डालने का सोचिए कि हम ये बना के ये करेंगे, और हम सोच रहे हैं कि इतने दिनों बाद ये सब चीजें ये इतनी ठीक हो जाएंगी। Yes, you can take any topic, Priya. You can take any topic. बट मेरा कंसर्न ये है कि आप ऐसी कोई रेयर डिजीज या ऐसा कोई रेयर टॉपिक मत पकड़ लीजिए कि आपको उसके केसेस ही ना मिले, बिकॉज यू हैव टू रियली रिक्रूट का मतलब ये है कि आपको घर घर जाके अब आप नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द कोविड एंड ऑल, सो एक क्वेश्चनर तो बन जाए, एटलीस्ट आप फोन पे उनका डेटा तो ले पाए, ठीक है, रिक्रूट तो कर पाए। कई बार लोग रिक्रूट भी नहीं होते हैं, दे वोंट गिव यू योर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, दूसरा एक जरूर ख्याल रखिएगा, कोई ऐसी चीज रिवील नहीं करनी है बिकॉज एथिकल इश्यूज आते हैं, वी डोंट हैव एनी एथिकल कमिटी, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी बायोकेमिकल टेस्टिंग, बिकॉज हमने कोई ब्लड नहीं लेना, किसी का कुछ नहीं लेना, ठीक है। हमारा सारा क्वेश्चनर होगा, या हम डाइट बेस्ड करते हैं, किसको डाइट देंगे, तो ऐसी सी चीजें। और अगर आपको कुछ पता चलती है, इफ यू हैव आस्क्ड अबाउट एनीथिंग कि उसकी बहुत पर्सनल है, सो डोंट रिवील दैट, एथिकली आपको बहुत ही स्ट्रांग रहना पड़ेगा, एंड जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, यू कैन जस्ट डिस्कस विद मी, नॉट हियर एंड देयर, ठीक है, बिकॉज आई एम योर काउंसलर, सो वी हैव टू डिस्कस, बिकॉज गाइड के साथ तो डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन, यस, बट अंडर न्यूट्रिशन के आप बच्चे या पर्सन्स कहाँ से लेंगे, ये आपको देखना है, ठीक है। अंडर न्यूट्रिशन वाले लोगे आप, फिर उनका सारा पैरामीटर्स, सारा बॉडी के मेजरमेंट्स लेंगे, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लेंगे, बायोकेमिस्ट्री आपको नोट करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट यू हैव टू गिव समथिंग। ऐसे केसेस में ना आप एक डाइट बनाइए, कुछ बना के, या उनको बना के मत दीजिए, बनाइए रिटर्न में, देन उनको आप बोलिए कि आप इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये ऐसे ऐसे खाइए, ठीक है। देन नोटिस कीजिए, फिर उनको थोड़ा टाइम दीजिए, महीने भर का, लाइक आपको ये पता होगा कि आपका एक प्रोजेक्ट चल रहा है एंड दे आर फॉलोइंग, आपको बीच बीच में कंप्लीटली फॉलो करना है। आपने ये नहीं कि 1 महीना उनको कह दिया फिर आपको सो जाना है, यू हैव टू। और साथ साथ में आपको प्रोजेक्ट का रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इंट्रोडक्शन पार्ट बनाना, आपको अपने पैरामीटर सेट करने हैं, और साथ के साथ उनसे नोट भी करते रहने हैं, ठीक है। 1 हफ्ते बाद कैसा लग रहा है, 2 हफ्ते बाद कैसा लग रहा है, जो जो अपने पैरामीटर सेट करते होंगे उनके बारे में यू हैव टू रियली आस्क फॉर द रीडिंग्स अबाउट दैट व्हाटएवर, ऑब्वियसली अच्छी डाइट उनको लेने को कहेंगे तो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट होगी। और फिर जो अंडर नरिश्ड होंगे, उस केस में आपको कंट्रोल्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन समथिंग प्रोजेक्ट, जैसे अंडर नरिश्ड है,
बच्चे आपने 30-35 ले लिए, ठीक है बच्चे, तो उनका आपने पैरामीटर स्टार्टिंग का नोट कर दिया, फिर एक इंटरवेंशन दे दिया एंड आप उसको फिर फॉलो करते जा रहे हो। फिर उसके बाद फिर ऐसे प्रोजेक्ट में पता क्या होता है, ये केस कंट्रोल्स नहीं होता, वो पहले वाली कंडीशन ही उनकी केस हो जाती है। फिर जब आप उस पे ऊपर एक इंटरवेंशन लगाते हो, दैट मींस यू आर वर्किंग ऑन दैट, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक कंपैरिजन ही हो जाता है दोनों सिचुएशन में, पहले वाली में और बाद वाली में। सो आपको ये सब प्लान करना है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम ले रहे हैं। और प्रेगनेंसी वाली की भी आप ले सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी फीमेल को स्टार्टिंग से लेके कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं फॉर 9 मंथ्स, अब आप 9 मंथ्स आपके पास है नहीं कि आप फॉलो कर सकते हो। सो ऐसे केसेस भी आप ले सकते हो जो 2-4 फीमेल्स हैं जिनके बच्चे हो गए हैं, पर आफ्टर डिलीवरी उनको क्या थी कॉम्प्लिकेशन, ड्यूरिंग क्या थी, फिर उसके बाद क्या ठीक हो गया, कॉम्प्लिकेशंस थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से ही था, जैसे बैक केक होती है या सिजेरियन हुआ था या फिर इतने दिनों बाद ठीक होता है, फिर या अब उन्होंने वो डाइट खाई या ऐसे था, मतलब यू कैन ऑलवेज कंपेयर। तो ऐसे केसेस में कंट्रोल केसेस अलग से लेने की जरूरत नहीं होती, आप केसेस ही ले लेते हो, वही आपके एक प्रीवियस सिचुएशन से नेक्स्ट जो वाली सिचुएशन होती है ना, उसका कंपैरिजन आके 2 सिचुएशंस आ जाती हैं। केसेस हम तब लेते हैं क्योंकि उसकी अगली पिछली सिचुएशन नहीं होती, हमको उसके सामने कंट्रोल करके कि इसमें ये प्रॉब्लम है इसमें नहीं है, तो उनको कंपेयर करना होता है। अगर आप कोई डाइट इंटरवेंशन दे रहे हैं या फिजिकल एक्सरसाइज इंटरवेंशन दे रहे हैं, तो उसकी जो प्रीवियस कंडीशन होती है जब स्टार्ट किया होता है और उसके बाद जब वो खत्म होता है तो हम उनकी कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। उसमें 2 तरह की स्टडी केसेस लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सो प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, ठीक है। आप हमेशा मेरी मेल पे मुझे लिख के भेज सकते हैं कि ऐसी ऐसी स्टडीज ले सकते हैं, और केसेस प्लीज, और जो भी प्लान करना है, डाइट प्लान करना है, फिजिकल एक्सरसाइज रेजिमेंट है, रेजिमेंट आपको बनाना है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड डाइट का रेजिमेंट बनाना है, फिर वो उसमें भी आपको क्या देखना है कि ग्रिप देखनी है, वट एवर, अगर जिम वाले लोग चाहिए या सिंपल एक्सरसाइज वाले लोग चाहिए, या जो पहले रेसिडेंटरी लाइफस्टाइल पे थे आपने उनको फिजिकल एक्सरसाइज रेजिमेंट पे डाला है अलॉन्ग विद द डाइट, वो सब आपको, ठीक है। सो ट्राई टू डू दैट, try to see that, try to be take the parameters of that so that you can compare between the previous condition and the other conditions or case control studies। इससे ज्यादा इधर उधर मत जाइएगा बिकॉज क्वेश्चनर पे यही है। रिपोर्ट का कंटेंट स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, आप सिनॉप्सिस बना के भेजेंगे, शुरू में एक टाइटल पेज होता है, आई विल प्रोवाइड यू दैट, पहले आप बनाइए एक हाइपोथेसिस, एक टाइटल सेट कीजिए, टाइटल भी मैं रिफाइन कर दूंगी, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाइए, थोड़ा बहुत लिटरेचर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर सर्च करके जरूर लिख के भेजना, प्लीज कट कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत कीजिएगा, करिएगा लेकिन उसको अपनी वर्डिंग में एक के बाद कुछ, पिछली अगली लाइन है जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये नहीं है कि कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। इफ वी आर डिस्कसिंग समथिंग इन दिस वन पर्टिकुलर पैराग्राफ एंड देन अगला पैराग्राफ कहीं और ही पहुंच गया, ठीक है। सो प्लीज डोंट डू दैट। इस तरह से उसको लिंक बना के एक बुक आपको छापनी है, यू आर डूइंग सम गुड प्रोजेक्ट एंड सो ट्राई टू hypothesize about something good problem so that you can work, so that something good comes out of that as a result so that we can publish, ठीक है। नो सिनॉप्सिस शुड नॉट बी हैंड रिटन, सब कुछ टाइप करके दीजिए, आप कॉपी पेस्ट कीजिए ना, ट्राई टू, आप कंप्यूटर पे काम करने की आदत डालिए, मे बी यू माइट बी हैविंग, एवरीबडी विल बी हैविंग द कंप्यूटर, अगर नहीं है किसी के पास तो आप हैंड रिटन कीजिए, बट फाइनली फिर आपको टाइप करवाना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई टू बी, That's good. Menstruation hygiene is also very nice project, but आपको फीमेल्स लेनी पड़ेंगी और ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दें एंड जो हाइजीन फॉलो करती हैं, ठीक है। तो उससे क्या प्रोजेक्ट होता है, और जो हाइजीन नहीं फॉलो करती है उससे इन्फेक्शन के चांसेस, वो चाहे आप फीमेल्स ना लीजिए, वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हम लिख देंगे कि यस हाइजीन फॉलो करके ये सब होता है, और जो हमने प्रोजेक्ट लिए हैं या हमने सब्जेक्ट्स लिए हैं अंडर आवर प्रोजेक्ट, वो एक मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग एक हाइजीन फॉलो करते हैं, मे बी दे माइट बी यूजिंग सम हाइजीन वॉशेस, some good kind of a soaps during that, and you the और जो आपके I mean the material used during the menstruation, ठीक है, उस पे भी, उसका भी आप अंदर मेंशन कर सकते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ हैं, डिफरेंट कंपनीज के भी हैं, तो आप कर सकते हो। नाउ यू पीपल हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि क्या करना है, प्रॉब्लम कुड बी एनी, बट उसके आपको सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। और आप केस सर कंट्रोल स्टडी प्लान कर रहे हैं या फिर जो प्रीवियस वाले या कोई इंटरवेंशंस डाल के प्रीवियस एंड फाइनल आफ्टर ड्यूरिंग सेटिंग सम पीरियड फाइनल वाली सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं, लेकिन डेटा अच्छा बने, अच्छी टैबलेटेड फॉर्म में आए, अच्छे पैरामीटर आप स्टडी कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कीजिए, एंड देन यू कैन डिस्कस विद मी ऑलवेज, आई एम ऑलवेज देयर, I've shared my number and my email too, you can always discuss, then we'll starting में हम एक synopsis submit करते हैं, then we'll have good time। सिनॉप्सिस आप प्लीज जल्दी सेट कर लीजिए, बिकॉज देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, जो एक्चुअली आपने प्लान करके देना है,
सिनॉप्सिस तो टेंटेटिव प्लानिंग है ना कि हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, दैट प्लान वी हैव टू सबमिट विद इग्नू, ठीक है, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, दैट वुड बी द एक्चुअल टाइम पीरियड जो कंज्यूम करेगा आपका टाइम, सो दैट यू हैव टू राइट द थीसिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो एनालिसिस करके बनानी है आपको, ठीक है। So I think I have made you understood about some perspectives, and if you have any problem, you can call me. Okay, you can call me or mail me rather. You can write one mail में एक क्वेश्चन लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखिए, मैम ये कैसे करना है, ये मेरी हाइपोथेसिस है, इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या, आप ऑब्जेक्टिव्स बना के भेजिएगा, बिकॉज मैं सब पे एक पे बात करूंगी ना तो फिर आई कैन रिफाइन देम, ठीक है, या फिर मेरे माइंड में करते करते आ जाता है, देन आई विल ऐड इन दैट, व्हेन आई विल आंसर आई विल ऐड ऑन दैट, ठीक है। Okay, sir. Thank you, madam. Nice presentation. Yeah, thank you. It's helpful for me also for written my project. Yeah. And madam, please share us some journals where we can publish our article also. आपने लिख लिया है? Okay, ठीक है। So reason है भी हमें ना काफी कुछ ऐसे पेड जर्नल्स हैं, कुछ अच्छे नहीं सर, पेड वाले में नहीं करेंगे। हाँ, पेड वाले में नहीं करेंगे। पेड भी अगर बहुत थोड़ा सा पेड होता है ना, 1000-1500 उनकी प्रोसेसिंग फीस होती है, देन इट्स फाइन। समटाइम्स दे आस्क फॉर बिग मनी, तो वो नहीं करेंगे हम। 1000-1500 2000 वो इट्स ओके, बट उससे ज्यादा नहीं। वो कई लोगों की वो होती है प्रोसेसिंग फीस होती है, वो उतना करिए, उससे ज्यादा नहीं। और मैडम प्लेगरिज्म चेक हो जाएगा? यस, वो तो वैसे मैं आपको बता दूंगी, ऑनलाइन भी हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डाल के ना ऑनलाइन आ जाता है आपका, क्योंकि आजकल आप प्लेगरिज्म चेक रिपोर्ट साथ में लगानी होती है व्हेन यू हैव टू पब्लिश। यस, नहीं मैंने प्लेगरिज्म पैसे ऑनलाइन किया था, पर वही मेरा डाटा कहीं और फिर पब्लिश हो गया, सो दैट्स व्हाई मैं ओहो, ओके, आई कैन गेट इट, अंडरस्टैंड, आई हैव अंडरस्टूड, बिकॉज़ ऑनलाइन में भी अब ये चीजें आ गई हैं कि आप चेक कुछ करते हो, वो डेटा किसी के पास पहुंच जाता है, एंड देन यू आफ्टर दो, ये बहुत सारी केसेस देखी है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, मैं चेक करवा दूंगी, पहले आप लिखिए, फिर करिए, फिर आप जो पेपर सबमिट करेंगे, देन आई विल चेक दैट, ठीक है। सो टुडे प्रेजेंटेशन इज सो नाइस मैडम, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, माय प्रिविलेज। Okay, I'm leaving. Okay जी, okay, I'll leave that. हेलो मैम। हेलो, हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। वैसे तो हमारे बहुत सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई हैं। हाँ जी मैम, मैं आपको अभी थोड़ी देर में सिनॉप्सिस का मैं आपको सेंड कर देती हूँ, देन प्लीज आप उसको चेक करके अप्रूवल बिल्कुल, ठीक है, इट्स ओके। थैंक यू मैम। आपके आईडी पे सेंड कर दूँ या फिर आपके नंबर पर, आप बता दीजिए। व्हाटएवर, व्हाट्सएप पे भी आप कर सकते हो, मैं अपने आप कंप्यूटर पे वेब पे जाके कर ले लूंगी, कोई बात नहीं, आप जैसे कंफर्टेबल आप ऐसे की